محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے کی اگر میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ آغاز قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ہلدی، چاول اور کپاس کی برآمدات بڑھانے کے لیے نظام آباد میں میگا ایکسپورٹ بیداری پروگرام۔ کسان غیر ملکی تجارت سے جڑے، زیادہ منافع کمائیں، ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی۔ نظام آباد امام وفد کا مختلف عیدگاہوں کا دورہ، انتظامات کا لیا جائزہ، عید سے قبل کام مکمل کرنے کا عیدگاہ کمیٹی کو دیا تیقن۔ قومی شاہراہ پر ایک بار پھر سڑک حادثہ، 4 لوری اور 7 کاریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی، کوئی جانی نقصان نہیں۔ کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کلکٹر الا ترپاٹھی نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ ضلع کے کسانوں کو غیر ملکی تجارت سے جوڑنے اور زیادہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے انہیں ہلدی، چاول، سویابین، مکئی اور کپاس جیسی فصلوں کو بیرونی بازاروں میں برآمد کرنے میں کسانوں کی مدد کرنے کی ضرورت کی یاد دلائی۔ وزارت تجارت اور صنعت، DGNTE، APEDA، نیشنل ہلدی بورڈ اور انڈیا پوسٹ کے زیر اہتمام آج نظام آباد کلکٹریٹ میں میگا ایکسپورٹ پروموشن پر ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے کہا کہ نظام آباد کے کسان جو زرعی شعبے میں جدید طریقے اور سائنسی نقطہ نظر اپنا رہے، ملک کے لیے ایک مثال قائم کر رہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ آرمور کے علاقے میں ہلدی کی کاشت اور انکاپور کے کسانوں کے اختیاری زرعی طریقوں کو خاص پہچان ملی۔ کلکٹر نے رائے دی کہ اگر کسانوں کو فصل کی کاشت میں جدید ٹیکنالوجی، میکانائزیشن، معیاری مصنوعات، مارکیٹنگ کے ہنر اور پروسیسنگ کے طریقوں سے واقف کرایا جائے اور غیر ملکی منڈیوں سے منسلک کیا جائے تو زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں DGFAE کے حکام نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے کسانوں کو ٹریڈ کنیکٹ پورٹل، ای کامرس کی برآمدات اور غیر ملکی تجارت کے مواقع سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہلدی، چاول، سویابین، مکئی اور کپاس کی فصلوں کی مارکیٹ کی توسیع، معیار اور برآمدی عمل کے بارے میں بتایا۔ DGFTE ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ اگر کسان غیر ملکی برآمدات کی جانب قدم اٹھائیں گے تو انہیں زیادہ منافع ملے گا۔ اس پروگرام میں نیشنل ہلدی بورڈ، زرعی یونیورسٹی، محکمہ باغبانی، محکمہ صنعت کے افسران، کسانوں اور تاجروں نے شرکت کی۔ ایران اور امریکہ کے بیچ جو یدھ چل رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ اسپیس بھی ہمارے کسان استعمال نہیں کر پائے، تو اس کے فلسفروپ کافی ڈسٹریس سیل ہوئی ہمارے یہاں۔ ایک سمے مجھے جہاں تک یاد ہے، جب میں نظام آباد آئی بھی نہیں تھی تو پیپر میں پڑھتے تھے کہ بھائی 17,000 جا رہا ہے میٹرک ٹن، 18,000 جا رہا ہے۔ ڈسٹریس سیل کی ایسی پرستھتی آ گئی تھی، چاہے وہ کووڈ ہو یا اور بھی جیو پولیٹیکل سیناریوز ہو، کہ 8,000 روپے تک اس کا جو ہے دام گرا تھا۔ تو ایک جو ہم DGFT سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ جو انشورنس ہے ان فارم آف پرائس انشورنس، جیو پولیٹیکل کنڈیشن سے، یا پھر کئی بار ہوتا ہے کہ جو واتاورن بھی ہوتا ہے۔ میدان عرفات لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا دنیا بھر کے لاکھوں عازمین، رب کریم کے حضور دستے دعا۔ حج 1447 ہجری کا سب سے عظیم اور بنیادی رکن وقوف عرفہ آج انتہائی عقیدت، خشوع و خضوع اور روحانی کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے اور رحمت الہی کے طلبگار بنیں گے۔
इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, यानी हज अरफा ही है। यही वो मुबारक दिन है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है, गुनाहों को माफ करता है और जहन्नुम से बड़ी तादाद में लोगों को निजात अता फरमाता है। हुज्जाज इकराम आज ज़ोहर और असर की नमाज़ें मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में अदा करेंगे, खुतबा हज सुनेंगे और फिर गुरूब आफ्ताब तक जिक्र, तिलावत कुरान, दुरूद शरीफ, तौबा व इस्तग़फ़ार और खुसूसी दुआओं में मशगूल रहेंगे। लाखों आसमीन अपने रब के हुजूर आंसू बहाते हुए अपने लिए, अपने अहले खाना, उम्मत मुस्लिमा और पूरी इंसानियत के लिए खैर व सलामती की दुआएं मांगेंगे। वकूफ़ अरफा के दौरान सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर है। उलमा के मुताबिक यौम अरफा दुआ की कबूलियत का अजीम दिन है और इस दिन मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं की जाती। सऊदी वजारत उमूर इस्लामी दावत व इरशाद ने मैदान अरफात में वाक़े मस्जिद निमरा में लाखों आज़मीन के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वजारत के मुताबिक मस्जिद निमरा में 1,25,000 मुरब्बा मीटर से जायद रकबे पर आला मियार के खालीन बिछाए गए ताकि हुज्जाज इकराम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम की जा सके। शदीद गर्मी और लू के असरात से बचाव के लिए मस्जिद के अगबी सहन में 19 बड़ी छतरियां नस्ब की गई, जो दर्जे हरारत में तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी लाने में मदद देती है। इसके अलावा 117 जदीद मास्टर फैन भी नस्ब किए गए, जो पानी के बारीक फव्वारे के जरिए माहौल को खुशगवार बनाते हैं। वजारत ने मस्जिद के अंदर एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन और साउंड सिस्टम को भी जदीद खुतूत पर इस्तेमाल किया है, जबकि पीने के ठंडे पानी की फराहमी के लिए 70 कूलिंग यूनिट्स नस्ब किए गए, जिनसे फी घंटा 1,40,000 से जायद हुज्जाज मुस्तफीद हो सकेंगे। हुज्जाज की रहनुमाई के लिए मस्जिद में 150 डिजिटल स्क्रीनें फाल की गई, जबकि मुख्तलिफ जुबानों में शरई सवालात के जवाबात देने के लिए वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म्स भी कायम किए गए। वजारत ने मस्जिद निमरा और जबल रहमत के अतराफ 200 मुबल्लिगैन, 50 मुर्तजमीन और 300 दावती कारकुन भी तैनात किए हैं, ताकि आज़मीन को हर मुमकिन दीनी व रहनुमाई सहूलत फराहम की जा सके। शदीद रश को मुनज़्ज़म रखने के लिए मस्जिद में दाखिले और इखराज के लिए 72 दरवाजों का खुसूसी इंतजाम किया गया, जबकि सिक्योरिटी, तिब्बी इमदाद और हंगामी खिदमात के हजारों एहलकार भी तैनात है। उधर सऊदी हुक्काम ने आज़मीन को हिदायत दी कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, धूप से बचाव के लिए छतरियों का इस्तेमाल करें और तिब्बी हिदायत पर मुकम्मल अमल करें, ताकि मनासिक के हज को बखैर व आफियत अदा किया जा सके। सीपी साई चैतन्या के हुक्म के मुताबिक आरमोर देही पुलिस गांव की हिफाजत के लिए खुसूसी बेदारी प्रोग्राम चला रही। हमारा गांव हमारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम का इनेकाद पचला नाडुकोडा गांव में किया गया, ताकि अवाम में ट्रैफिक क़वानीन, साइबर क्राइम्स और मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। हमारा गांव हमारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम आज वेलपुर मंडल के तहत पचला नाडुकोडा गांव में आरमोर देही सीआई जान रेड्डी और वेलपुर एसआई संजीव की क़ियादत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सीआई जान रेड्डी ने नौजवानों को नसीहत की कि वो गांजा और मंशियात जैसी बुरी लत से दूर रहे। उन्होंने कहा कि मंशियात की वजह से सेहत के मसाइल के साथ साथ खानदानों में तशद्दुद का भी खतरा है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के रवैये पर मुसलसल नजर रखे। इसी तरह साइबर मुजरिमों के घपलों के बारे में अवाम को आगाह किया गया। उन्हें मशवरा दिया गया कि अगर वो किसी बैंक से कॉल करने का दावा करते हैं तो किसी भी हालत में OTP ना दे। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन पर मशकूक APK फाइल्स को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जाती मालूमात हैक हो सकती है। उन्होंने मुतलबा किया कि हर शख्स ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करे और नाबालिगों को गाड़ियां ना दे, और मशवरा दिया कि 2 व्हीलर सवार हेलमेट पहने और कारों में सफर करने वाले सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि गाड़ियों से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात हमेशा अपने पास रखें और वजाहत की कि देहात में CCTV कैमरों को ऑपरेशनल किया जाना चाहिए और घरों में CCTV कैमरे लगाने से मुजरिमों की शिनाख्त में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि हर कैमरा 100 पुलिस वालों की निगरानी के बराबर है। इस प्रोग्राम में सरपंच के नरसैया, डिप्टी सरपंच रघुपति, विलेज डेवलपमेंट कमेटी के अरकान, GP सेक्रेटरी नवनीता, गाँव वाले और दीगर भी मौजूद थे। కానీ మీరు తాళం వేసుకొని పోయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఇప్పుడు మన నల్లులో దొంగతనం అయింది. ఒక 3 ఇళ్లలో రాత్రి వచ్చి ఎవరో చేసిపోయినారు. ఏం చేసినారంటే గేట్కు తాళం వేసుకున్నారు. నువ్వు పోతున్నావు, డోర్కు తాళం వేసుకుంటున్నావు,
మెష్ కూడా డోర్ పెడతారు, మెష్ కూడా బయట నుంచి గొల్లెం పెడతారు, మెష్ ఉంటే తర్వాత బయటకు వచ్చి గేట్ కూడా తాళం వేసుకుంటారు. దాని మూలంగా ఏం జరుగుతుంది? మేము ఓవరో ఇంట్లో ఏం రావచ్చు మీరు అని చెప్పి వెల్కమ్ చెప్పినట్టు ఉంటుంది. అవునా కాదు? లోపల ఆల్రెడీ తాళం వేసినావు, మెష్ మూసినావు, సరిపోతుంది కదా. అందరు కీస్ ఎక్కడ పెడుతున్నారు? తీసుకుపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి డోర్ మ్యాట్ కింద పెడతారు, లేకపోతే పక్క పండి దాంట్లో పెడతారు. ఇంట్లో బంగారం బీరోలో పెడతారు, బీరో మీద పెడతారు. అవునా కాదు? సో ఈ రకంగా చేస్తున్నారు అందరు కూడా. అంటే మన ఇంట్లో విలువైన వస్తువులు ఉన్నప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 1/2 కోటి రూపాయల ప్రాపర్టీ ఏందన్నా ఎట్లా పోగలిగింది? మనం కొంత భద్రంగా మనం ఉండాలి. ఎవరి జనాభాకి సంబంధించిన లెక్కల గురించి వస్తున్నారు, ఆఫీసర్లు వస్తున్నారు, కొంతమంది వచ్చి వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఒకటి స్ప్రే చేసి దగ్గర నుంచి లాక్కొని వెళ్ళిపోయినారు, చైన్ లాక్కొని పోయినారు. అంటే జనాభా లెక్కలతో ఉందనుకోండి, కిరాణా షాప్కి వచ్చి వాడు ఏదో దిగమని చెప్పారని వాడు దిగంగానే లాక్కొని పోవడానికి కూడా అవకాశం. एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर एमआईएम निज़ामाबाद यूनिट ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र शहर की मुख्तलिफ ईदगाहों का किया दौरा, तैयारियों का लिया जायज़ा और फ़ौरन हल तलब मसाइल के हल के लिए ओहदेदारान से बातचीत और जदीद ईदगाह में पानी के लिए नए बोरवेल की तनसीब और मदीना ईदगाह में मोहर्रम अंदोज़ी के लिए इक़दामात और मुसलमानों को पेश की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। म्यूनसिपल की जानिब से मिलने वाले फ़ंड्स ईद की तैयारियों के लिए नाकाफ़ी, मजीद फंड्स की इजराई का ईदगाह कमेटी का मुतालिबा। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमआईएम निज़ामाबाद यूनिट ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा करते हुए म्यूनसिपल एमई और एई के हमरा इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर मदीना ईदगाह में मुहर्रम अंदोज़ी करने और ईदगाह जदीद में पानी के लिए बोरवेल की नुमाइंदगी की गई। जितने भी हमारे कारपोरेटर्स हैं मजलिस के जो ईद की तैयारियों के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे, एमई साहब को लेकर के उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे ईदगाह कमेटी के मसाइल थे, जैसे कि पानी के लिए बोर की सख्त ज़रूरत थी, तो फ़ौरन जो है ना हमारे एमई साहब से कह करके एक नया बोर डालने के लिए अप्रूवल लिए और एक पंप भी प्रोवाइड करेंगे, इसका उन्होंने वादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हम शुक्रगुज़ार उस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़, जो अखराजात होते हैं ईदैन के मौके पर, उसमें हमें जो रकम वसूल होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो काफ़ी कम होती है, उससे ज़्यादा हमारे अखराजात है। इस सिलसिले में हमने जो है ना हमारे डिप्टी मेयर साहब से गुफ्तगू किया था, मैं और एमपी साहब के सामने ये बात रखे थे, तो उन्होंने उस सिलसिले में भी जो है हमें एश्योरेंस दिलाया है कि वो जो है इंशाअल्लाह हम लोग जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसकी भरपाई करेंगे इंशाअल्लाह। जिस पर एमआईएम वफद और म्यूनसिपल ओहदेदारान ने ईद से कबल काम मुकम्मल करने का तयख्खुन दिया, जिस पर ईदगाह कमेटी ने एमआईएम वफद, एमई और एई का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर अमर फारूक, अरशद पाशा, कोऑप्शन मेंबर अजवत खान, खलील अहमद व दीगर भी मौजूद थे। ईदगाह में जो तैयारियां का सिलसिला है उस सिलसिले में एमई साहब को भी लेके आए थे, एई और तमाम ही लोग। ये यहाँ पर सब काम इत्मीनान बख्श चल रहा है। उसके अलावा भी खुसूसन मदीना ईदगाह में पिछले वक्त जब कमेटी से हम मुलाकात किए थे तो तभी भी मुहर्रम के ताल्लुक से कहा था, तो हमने ये वादा लिया है एमई साहब से भी, और हम उम्मीद भी है कि यहाँ पर कमोबेश 600 गाड़ी मुहर्रम डालते हुए वो निचली सतह जो उसको मुसत्ता किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर पानी की जो किल्लत है उसको दूर करने के लिए ईद से पहले इंशाल्लाह हम और एक बोर डालेंगे, जिससे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो बोर से पानी निकल आएगा और यहाँ की सजरकारी जो होती है उसमें भी मदद होगी, और जो लोग आते हैं उनको वजू करने के लिए भी सहूलत होगी। ऐसे ही साथ में जदीद ईदगाह जो शांति नगर में है वहाँ भी एक बोर के लिए हमने डिमांड की, तो वहाँ भी इंशाल्लाह ईद के से पहले ही एक बोर डाला जाएगा। ऐसे अहले हदीस ईदगाह पर भी वहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह उसको भी फुलफिल किया जाएगा। कामरेडी जिले में गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं से किसानों को मुश्किलात का सामना है। धान की कटाई मुकम्मल हो चुकी, खरीदारी मराकज़ और खेतों में सूखे हुए धान बारिश में भीग गए। बर वक्त खरीदारी न होने और मुसलसल बारिशों की वजह से किसान मुश्किलात का शिकार है। कामरेडी जिले में पीर की शाम गैर मौसमी बारिश हुई, जिसकी वजह से काश्तकारों को मंडियों और खरीदारी मराकज़ में धान बेचने के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरना पड़ा। किसानों ने फसलों को तिरपालों से ढाँप दिया।
किसान मायूस है कि उनकी सारी मेहनत रायगा गई। उन्होंने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि 20 दिन तक सहन में धान की हिफाजत के बाद बिलाआखिर बारिश ने उन्हें डुबो दिया। उनका कहना था कि धान जमा हुए कई दिन गुजर जाने के बावजूद अमले की अदम तवज्जोही के बाद पूरा धान खेतों में पड़ा है। बहुत से किसान इस बात पर अदम इत्मीनान ज़ाहिर कर रहे हैं कि किसानों की जानिब से अनाज को खरीदारी मराकज़ में ले जाने के बाद भी उन्हें ट्रैक शीटें नहीं दी गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उनके साथ इंसाफ किया जाए, अगर नहीं तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि उन्हें सूद अदा करना पड़ेगा। ఫస్ట్ వార్డ్ ఈరోజు అంటే మా వడ్లు కాంట అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు లారీ కూడా వచ్చింది. లారీ వచ్చిన తర్వాత కాంట చేద్దామంటే ఎండ బాగుంట్లో కొంచెం ఈవినింగ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఊకున్నారు. ఇక అప్పటిదప్పట్లోనే మొగలైంది. వర్షం, గాలి, వాన బాగా వచ్చేసి ఇక ఎక్కడక్కడ బాధలు కప్పుదామన్నా కానీ కప్పకుండా అంత స్పీడ్గా గాలి వాన వచ్చింది. అయినా కప్పేసాము. కాకపోతే ఎంత తడిసిపోయినో తెలియదు. కాకపోతే దాని గురించి ఏదైనా అధికారులు మా గురించి ఏదైనా ఆలోచించి, ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ ఏదైనా రైతుల గురించి ఆలోచించి కొంచెం రైతులను పట్టించుకొని మంచి చేయాలని కోరుతున్నాను. లారీలు కొంచెం తొందరగా పంపించుకుంటట్టు అధికారులు కొంచెం ఆలోచన చేసి తొందరగా పంపించాలి. అక్కడ పైనుంచి ఏమో తొందరగా కంప్లీట్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ లోకల్ అధికారులు అయితే లారీలు 2 రోజులకు ఒకసారి ఒక్కొక్క లారీ అట్లా పంపిస్తున్నారు. కొంచెం అధికారులు ఇక లోకల్ అధికారులు పట్టించుకొని తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని కోరుతున్నాం. కాంట అయినా 291 సంచి అయింది. 116 క్వింటాల్లో 40 కిలోలు అయినాయి అన్న. 291 సంచి మళ్ళీ ఆరబెట్టుకుంటారు దాన్ని. ఇక మొత్తం సంచులు మళ్ళీ ఆరబెట్టమని ఇంకా ఏమీ తెలియదు. ఇప్పుడైతే మొత్తం ఎంతో కొంత తడిసిపోయినాయి. दीनी समर कैंप बच्चों की दीनी, अखलाकी और अमली तरबियत का एक बेहतरीन जरिया है। मदरसा फलाह दारैन में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी का खिताब। नंदीपेट मंडल के मदरसा फलाह दारैन में आज समर वोकेशन कैंप का इख्तिताम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा व तालिबात को इनामात व असनादात तकसीम करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया, जनरल सेक्रेटरी जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में ऐसे कैंप बच्चों को दीन से जोड़ने, अच्छी आदतें सिखाने और उनकी शख्सियत को संवारने में अहम किरदार अदा करती हैं, जिससे बच्चों की दीनी मालूमात में इजाफा, बच्चों को कुरान करीम की सूरतें, दुआएं, नमाज का सही तरीक़ा, वज़ू और इस्लामी आदाब सिखाए जाते हैं। सच्चाई, अदब, एहतराम वालिदैन, बड़ों की इज़्ज़त और अच्छे अखलाक की तालीम दी जाती है, जिससे किरदार साजी होती है। बच्चे मस्जिद, कुरान और इस्लामी माहौल से करीब होते हैं, जिससे उनके ईमान और दीनी शऊर में इजाफा होता है। छुट्टियों में मोबाइल, गेम्स और बेमकसद सरगर्मियों के बजाय बच्चे मुफीद और मुस्बित माहौल में वक्त गुजारते हैं। इज्तिमाई सरगर्मियों के जरिए बच्चों में वक्त की पाबंदी, बाहमी ताउन, ज़िम्मेदारी और खुद एतमादी पैदा होती है। बच्चों को इस्लामी तारीख, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम के वाक़यात सुनाए जाते हैं, जो उनके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा करते हैं। यकीनन इस तरह के कैंप सलाहियतों को निखारने का मौका, तकरीर, नात, तिलावत, क्विज और दीगर सरगर्मियों के जरिए बच्चों की पोशीदा सलाहियतें उभर कर सामने आती है। दीनी समर कैंप सिर्फ तालीम का नाम नहीं, बल्कि ये ईमान, अखलाक और अच्छी शख्सियत साजी का एक मौसर जरिया है। ऐसे कैंप्स नई नस्ल को दीन से जोड़ने और उन्हें अच्छा मुसलमान और जिम्मेदार इंसान बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। काबिले मुबारकबाद है मदरसा फलाह दारीन के जिम्मेदारान हाफिज अब्दुल रशीद, हाफिज इमरान, हाफिज सलमान, हाफिज रेहान व दीगर असातिज़ा, जिन्होंने मौसम गर्मा की शिद्दत के बावजूद बच्चों को संभाला और दीनी तालीमात से जोड़ा। मुफ्ती शेख फयास ने प्रोग्राम को बहुस्न व खूबी चलाते हुए बच्चों को सराहा। मौलाना फेरोज असदी नाजिम मदरसा इस्लाहुल पनात की दुआ पर इजलास इख्तिताम पजीर हुआ कि हमारे इस इलाके के अंदर कोई फितना ना आने पाए और हमारे बच्चे दीनी एतबार से मजबूत हो जाएं, कुरान मजीद उनको सही पढ़ना आ जाए। और यही मकसद होता है माँ और बहनों, दीनी मदारिस का, दीनी मकातिब का और ये समर क्लासेस का और ये जो वेकेशन कैंप रखे जाते हैं, इन सब का मकसद यही होता है कि बच्चे हमारे दीन से आशना हो जाएं, उनके अकाइद मजबूत और मुस्तहकम हो जाएं और उनको नबी की सीरत मालूम हो जाए, जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाए, माँ बाप के क्या हैं हुकूक वो उससे वाकिफ हो जाएं, अखलाक, आदाब, किरदार उनके बन जाएं, यही उसका मकसद होता है। आपको मालूम होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों के दीन, ईमान, उनके अकाइद की हिफाजत की बहुत ज्यादा फिक्र करना चाहिए। मौजूदा दौर में तो नित नए फितने
आए दिन नया फितना मौजूद में आ रहा है। कादियानी थे, अब उनका पीछा किया गया तो शकीले निकले, उनका पीछा कर रहे हैं उलमाए किराम और लोगों को बता रहे हैं कि भाई इलाज और मुआलजे के नाम पर, तालीम और एजुकेशन के नाम पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना है और शकीलियत का फितना है। पता नहीं कौन कौन से फितने रोनुमा हो रहे हैं। भीमगल मंडल के मिंडोरा गांव में एमपीडीओ संतोष कुमार ने महिला समीक्षा इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तामीराती काम जल्द शुरू करके वक्त पर मुकम्मल किया जाए। एमपीडीओ संतोष कुमार ने गांव की सरपंच के लक्ष्मी रमेश के साथ मिलकर महिला समीक्षा 2 की इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा। भीमगल मंडल के मिंडोरा गांव में रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 10 लाख रुपये। इस मौके पर खिताब करते हुए एमपीडीओ ने तजवीज़ पेश की कि तामीराती काम जल्द शुरू करके वक्त पर मुकम्मल किया जाए। गांव की सरपंच के लक्ष्मी रमेश ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए कई स्कीमों को नाफिज कर रही। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मकसद खवातीन को तरक्की की राह पर गामजन करना है। उन्होंने बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार का इस इमारत के लिए फंड्स की मंजूरी में उनकी कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में कांग्रेस लीडरान, वार्ड मेंबरान, आईकेपी के नुमाइंदे, पंचायत अमला और महिला समीक्षा मेंबरान ने शिरकत की। VOAS ने रेंजल मंडल मरकज में आईकेपी दफ्तर के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की। उन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि कम उजरत पर अपने खानदानों की कफालत से उजरतों में इजाफे समेत उनके मुख्तलिफ मुतालबात को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। मंडल VOAS ने रेंजल मंडल मरकज में आईकेपी दफ्तर के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी। इस मौके पर उन्होंने अपने मसाइल पर APM मोहन को एक अर्जी पेश की। बाद में मंडल VOA की सदर और सेक्रेटरी ममता और इंदु ने कहा कि अगरचे हुकूमत फिलहाल 2000 रुपये तनख्वाह फराहम कर रही, ये उनके बच्चों की तालीम के लिए काफी नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम अज कम 5000 रुपये तनख्वाह फराहम की जाए, उनके खानदानों की कफालत के लिए 2500 रुपये फराहम किए जाए और ये भी मुतालबा किया कि लाइफ इंश्योरेंस और दीगर अलाउंस फराहम किए जाए। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो फौरी तौर पर GO नंबर 58 को नाफिज करे और उनके अहले खाना की किफालत करे। उन्होंने कहा कि वो देहात में डॉक्टर एसोसिएशन से मुतल्लिक मसाइल को हल करने में हमेशा पेश रहे हैं। इस प्रोग्राम में राजू, गंगाधर, कविता, लावण्या, सुजाता और मंडल VOA ने हिस्सा लिया। కనీస వేతనం 5000 ఇస్తుంది కానీ కనీస వేతనం కాకుండా మా గవర్నమెంట్ నుంచి 26000 ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము। రోజు గ్రామాల్లో మేము 24 గంటలు పని చేస్తున్నాము। ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరాలు వచ్చినా ఎవరికి ఏది కావాలన్నా వాళ్ళకు సమయ పాలనలకు వాళ్ళకు కావాల్సినప్పుడు ఏది కావాలంటే అది అందుబాటులో ఉండి మేము అందరినీ కూడా చూస్తున్నాం। కాబట్టి మా ప్రెస్ కోడ్, ID కార్డు ఇస్తూ కనీస వేతనం 26000 పెంచాలని అందరి తరపు నుంచి కోరుకుంటున్నాము। 58 జీవోను కూడా సవరించాలి। మరి అర్హులైన CAలందరికీ కూడా CCలుగా ప్రమోట్ చేయాలని। कौमी शहरत 44 पर सड़क हादसे ने खौफ व हिरास फैला दिया। एक तेज रफ्तार DCM वैन ने पहले खड़ी एक लॉरी को टक्कर मार दी। 4 लॉरियां और 7 कारें बेकाबू होकर एक दूसरे से टकरा गई, जिससे कारें तबाह हो गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिससे मुकामी अवाम को राहत मिली। इंदलवई मंडल के चंद्रायन पल्ली गांव के करीब कौमी शाहरा 44 पर पीर की शाम एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने खलीजी ममालिक में पेश आने वाले बड़े हादसात की याद ताज़ा कर दी। हादसे में 4 लॉरियां और 7 कारें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और मुकामी अवाम के मुताबिक हैदराबाद से नागपुर जा रही एक लॉरी का टायर पंक्चर हो गया था और उसे सड़क के किनारे खड़ा करके मरम्मत की जा रही थी। उसी दौरान पीछे से तेज़ रफ्तार DCM वैन आकर लॉरी से टकरा गई। टक्कर के नतीजे में उसी रास्ते से गुजरने वाली नारियल की एक और लॉरी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के बाद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम हो गया और 7 कारें सड़क पर फंस गई। उसी दौरान पीछे से आने वाली मवेशियों की खासे भरी एक लॉरी ने भी कंट्रोल खो दिया और कारों से जा टकराई, जिसके बाद कारें आपस में टकराती चली गई। हादसे की शिद्दत के बाद कई गाड़ियां सड़क पर बुरी तरह फंस गई और तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रही। इतला मिलते ही पुलिस और टोल प्लाजा अमला मौके पर पहुंच गया और तबाहशुदा गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। मुकामी सब इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
हल्दी, चावल और कपास की बरामदात बढ़ाने के लिए निजामाबाद में मेगा एक्सपोर्ट बेदारी प्रोग्राम। किसान गैर मुल्की तिजारत से जुड़े, ज्यादा मुनाफा कमाए, जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। निजामाबाद एमआईएम वफद का मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा, इंतजामात का लिया जायजा। ईद से कबल काम मुकम्मल करने का ईदगाह कमेटी को दिया तयक़ुन। कौमी शाहराह पर एक बार फिर सड़क हादसा, 4 लॉरी और 7 कारें एक दूसरे से टकरा गई। कोई जानी नुकसान नहीं। कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।